Release all prisoners. Release. In association with Kutumb app. राज्यसभा में आज ऐसा क्या हुआ कि सांसद जया बच्चन ने बीजेपी को श्राप दे दिया। विपक्ष ने क्यों कह दिया कि सरकार विपक्षी एकता में फूट डालने की कोशिश कर रही है। क्यों चुनाव सुधार बिल पेश होने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल खड़े कर दिए। इन सभी मुद्दों पर आज बात होगी। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा खास शो संसद में आज। इस शो में हम बताते हैं कि हमारे सांसदों ने संसद में कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा की, कौन सा बिल पास हुआ, काम कितना हुआ और हंगामा किन मुद्दों पर हुआ। सबसे पहले बात राज्यसभा की, जहां सांसद जया बच्चन आज बुरी तरह भड़की नजर आई। वजह रही ऐश्वर्या राय बच्चन का सोमवार को पनामा पेपर्स केस कनेक्शन में ईडी के सामने पेश होना। तो जया बच्चन ने क्या कहा संसद में, वो क्या भड़क कर बोली, खुद सुन लीजिए। मैं आपको धन्यवाद नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं। सर, दुख की बात यह है कि ये ऐसा वक्त है जहां बड़े बड़े चीजों एक मिनट। Under what rule? Member, point of order under what rule? Member is casting aspersion on the chair. He is taking the chair. CME chair. You refer to the rule. 250. And then, sir, opposition is degrading the house. They are casting aspersion on the chair. This is the degradation of the house. This is not the custom of the house that you are casting. Any member can be the chair. Anybody can sit on the chair. You cannot degrade the member. Chair. Kindly remove it. I vote for the record. And warn the member not to use this another time. Same thing. Okay. I vote for the record. If something is there, it will be expunged. And I will request the honorable member to start her speech. Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going It's not narcotic bill you are saying. to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You are not interested in the narcotics. Please. बोल रहे हैं। मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। Honorable member, you are honorable member. आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी If you have something, please address the chair. You don't have to reply to him. सर, बात भी ना करने दें। आप एड्रेस कीजिए शेयर को। भी ना बैठे। आप शेयर को एड्रेस चलाई घोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak
and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I'm calling the next सर ये member. जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोला expect you to take action on the comment that he made about me and my career. No, please. that will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and आप the entire विषय पर country बोलिए। that you don't आप believe in विषय पर justice. बोलिए। He made a personal आप remark विषय on पर me. बोलिए, आप विषय पे नहीं बोल रहे हैं। He made a आप personal विषय remark on पर me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it? You have to protect If you the have to house. fight, if you have intention to fight, this is not the forum. I'm very sorry. I'm very sorry. I'm calling the next speaker. I'm calling the next speaker. Ramnath Thakur. Sir, how can they make personal remarks in the house? How can they make personal remarks in the house? बड़े दुख की बात है कि आप लोगों के दिल में इतनी भी समझ नहीं है और इतना भी आप लोगों को लिए आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे हैं उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। I curse you. खैर आगे बढ़ते हैं। अब तफसील से पूरी कार्यवाही पर नजर डालते हैं। सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। राज्यसभा को सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वजह थी विपक्षी दलों का हंगामा 12 सांसदों के निलंबन को लेकर। उधर लोकसभा में भी इसी मुद्दे पर हंगामे के साथ कार्यवाही शुरू हुई। हंगामे के बीच भारत में वन्य क्षेत्र को लेकर सवाल किया गया। इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि सरकार देश में वन्य क्षेत्र के विस्तार के लिए कई कदम उठा रही है। इसके लिए ग्रीन इंडिया मिशन नेशनल फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कार्य किए जा रहे हैं। जो सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि देश में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएं की जा रही हैं, निश्चित रूप से फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू करी है। विशेष रूप से अफॉरेस्टेशन पॉलिसी को बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया और सरकार के द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन की स्थापना भी की गई है। ग्रीन इंडिया मिशन के अतिरिक्त जो नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है उसको 2002 में लॉन्च किया गया था। नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इको डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 50,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो एक कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट्री में यूज़ की गई है। राज्य स्तर की फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ भी काम किया जा रहा है और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन की दृष्टि से ट्राइबल मंत्रालय के साथ मिलकर के भी फॉरेस्ट मंत्रालय ने एक कार्य योजना, एक दस्तावेज पे हस्ताक्षर किया है और निश्चित रूप से फॉरेस्ट क्षेत्र में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने का कार्य करेंगे। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बीच आपने हंगामे के शोर को जरूर सुना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों से आग्रह किया कि वे अपनी सीट पर लौट जाएं और सदन की मर्यादा बनाए रखें, पर ऐसा हुआ नहीं और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है, आप अपनी सीट पर जाएं। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण मुद्दे थे, महत्वपूर्ण सवाल थे। आप सीट पे विराजेंगे तो महत्वपूर्ण मुद्दे समस्या का समाधान होगा। टी.आर. बालू जी, आप महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं सदन में, आपके सदस्य बेल में आते हैं। एक अच्छी परंपराएं बनाए सदन में। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, उनके सवाल उठाने के लिए, उनके अभावों को उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को उठाने के लिए मेरा आपसे आग्रह रहता है कि आप अपनी सीट पर विराजें। गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए सदन में। सदन की गरिमा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। आप दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे सर्वोच्च संस्था है लोकतंत्र की संसद। आप किस तरीके का व्यवहार करना चाहते हैं यहाँ पर? यह उचित है आपका व्यवहार? सदन के नेताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं, प्लीज सदन में शालीनता, गरिमा को बनाए रखें। यह हम सबका दायित्व है।
कि सदन में शालीनता गरिमा को बनाए रखें। प्लीज अपनी सीट पर जाइए। मैं आपको सभी समस्त महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने की इजाजत दूंगा। पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना, दी लल्लन टॉप अब कुटुंब ऐप पर भी आ गया है। मतलब अब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से, जहां आपको मिलेगी आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियोस और डेली शोज, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं। वापस कार्यवाही पर लौटते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में चुनाव सुधार बिल पेश किया। बिल पेश होने के साथ ही हंगामा भी शुरू हो गया। Sir, I wish to move for leave to introduce a bill further to amend the Representation of the People Act 1950 and the Representation of the People Act 1951. इस बिल को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, अधीर रंजन चौधरी, MIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए। मिस्टर चेयरपर्सन सर, मैं आपसे ये दरखास्त करता हूं कि हाउस ऑर्डर में लेके आइए। चेयरपर्सन सर, मैं दरखास्त करता हूं हाउस ऑर्डर में लेके आइए। हाउस ऑर्डर में लेके आइए प्लीज। हाउस चेयरपर्सन सर, हाउस ऑर्डर में लेके आइए। महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। ये आपके नेता बोल रहे हैं। विधेयक है, ये सरकार की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विरुद्ध है। कृपया ये जो विधेयक अपनी है, सीट पर ये जाइए। सरकार की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसका बहुत बड़ा नुकसान भारत के लोकतंत्र को होने वाला है। I do oppose the introduction of the bill under the title Election Laws Amendment Bill 2021, sir, and simultaneously demanding that the legislative document should be referred to the concerned standing committee for further scrutiny, given the fact that it is an infringement upon the fundamental right of privacy as has been enunciated by the Supreme Court. It will lead mass disenfranchisement. Sir, that is why we are demanding that this bill should be referred to the standing committee. Sir, I would like to refer the verdict of Puttaswamy and Union of India, which limited the use of Aadhaar authentication solely to welfare program and to link with PAN numbers of the purposes of income tax. Previous instances where the Aadhaar was used to clean up databases, as was done with Mahatma Gandhi, महत्वपूर्ण Rural पर चर्चा Employment हुई Guarantee है। Act, and उस the पर public आपत्तियां digital system हमारे कुछ मान्य सदस्य have कर रहे ended हैं। up उसको causing सुनिए। प्लीज अपनी arbitrary सीट पर वापस जाइए। deletion of people from database. Sir, raising data security. Sir, we do not have the data protection law right at this moment at our disposal. So you cannot bulldoze this kind of legislative document, नहीं है। which is replete with legal infirmity. प्लीज Mr. Chairperson, sir, the Aadhaar Act does not allow for the linking of the Aadhaar number to the electoral roll. The Aadhaar Act is very explicit. It is an act which is for the targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services. Voting is a legal right. चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए बिकॉज इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस of the government to introduce. Sir, this bill is outside the legislative competence of the House and violates the limits on legislation set by Supreme Court, sir, in Puttaswamy. The linking of IDs and Aadhaar violates the fundamental right of privacy as defined by Puttaswamy. Sir, this voter enrollment and issuing of voter IDs is carried out in pursuance of constitutional purpose by independent constitutional body. Subjecting voter enrollment to Aadhaar violates the independence and sanctity of the constitutional process. Lastly, sir, this bill allows government the power to suppress, disenfranchise, profile voters and discriminate between beneficiaries of government schemes.
it will end up violating the principles of secret ballot, universal franchise and free and fair elections. That is why, sir, I am asking for division, sir. I want division, sir. Sir, division होगा, देख सर division करेंगे सर आप. नहीं division होना. इस विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर कार्ड और सूची आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। लोकसभा में किरण रिजिजू ने चुनाव सुधार बिल को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब भी दिया। अध्यक्ष महोदय जी, जो हमारे माननीय सदस्यगण ने इस बिल का इंट्रोडक्शन को अपोज करने का जो तर्क दिया है वो बिल्कुल निराधार है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दिया वो भी बिल्कुल मिस इंटरप्रेट किया गया है। उन्होंने ना ही इस बिल का ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से समझा है, ना इस तर्क जो दिया है वो सही है। सबसे पहले सर, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस देश में अगर सरकार कोई कदम उठाते हैं जिससे जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये कहा गया है कि इलेक्शन का जो इलेक्टोरल रोल होता है तो वो क्रेडिबल होना चाहिए ताकि इलेक्शन ही साफ तरीके से क्रेडिबल हो, और साथ साथ सेक्शन 17 पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में कहा गया है नो पर्सन टू बी रजिस्टर्ड इन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सरकार यह कोशिश करता है कि बोगस वोटिंग रुकना चाहिए और फेक वोटिंग, नकली वोटिंग जो होता है जिसमें अगर रोकने के लिए कदम उठाया जाता है तो इसमें सदन को इसमें साथ देना चाहिए। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को सर मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुट्टुस्वामी केस में जो जजमेंट में लीगलिटी ऑफ दिस एक्शन व्हिच आर्टिकुलेट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ लॉ, ये बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं क्योंकि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके तहत लोगों को एक बराबरी दरवाजा और दर्जा देने जा रहे हैं। साथ साथ सर इसमें लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट होना चाहिए। तो बिल्कुल इस काम के माध्यम से आधार को इलेक्टोरल में लिंक करने से ये स्टेट का बिल्कुल इंटरेस्ट है। और सर फाइनली टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं, इसलिए ये बिल को पूरे एकजुट से समर्थन करने के लिए मैं आह्वान करता हूं। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर हंगामे को देखते हुए राज्यसभा को दूसरी बार शाम 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। राज्यसभा की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता है। उधर लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने के साथ ही चुनाव सुधार बिल पास कर दिया गया। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। आई इंट्रोड्यूस द बिल। फिर लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया। राज्यसभा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि हमारे हेल्थ वर्कर्स के प्रयासों के चलते 88% लोगों ने कोरोना की पहली डोज लगा ली है, वहीं 58% लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। आज भारत की ज्यादातर आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि आज भारत की क्षमता प्रति माह 31 करोड़ डोज बनाने की है। अगले 2 महीनों में 45 करोड़ डोज प्रति माह हो जाएगी। और इस तरह हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब बात 12 सांसदों के निलंबन पर सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक की। इसमें विपक्षी सांसदों को भी न्योता दिया गया था, पहुंचा कोई नहीं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से बुलाई गई बैठक पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सिर्फ 4 दलों को बुलाकर अगर विपक्ष के सभी नेताओं को नहीं बुलाएंगे तो क्या संदेश जाएगा। ये विपक्षी दलों की एकजुटता को तोड़ने की साजिश है और इस तरह ये बैठक फेल हो गई। तो ये थी आज संसद की कार्यवाही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।